Students, in this video, we will discuss about a simple permanent tissue. Actually, in the previous video, we have discussed about meristematic tissue, which is the first type of the plant tissue. Good morning, students. I am Avinav Singh, your biology faculty. Welcome to my channel, Avinav Singh Biology. In this channel, I make a lot of biology-based educational videos, which are helpful to many other medical-based entrance examinations. As for example, AIIMS, JIPMER, NEET. I make a lot of videos which are also helpful for the board examinations also. So if you are students or viewers or get a lot of educational videos, then please subscribe my channel, share my videos, like and comment on my videos. So let's move now. The second type of plant tissue is permanent tissue. So what do you mean by permanent tissue? Permanent tissue is a plant tissue. As its name, it is permanent in nature. So permanent tissue is formed by the process of differentiation. We have already discussed in the previous video when we have discussed about the meristematic tissue, about the process of differentiation. So what is differentiation? Differentiation is the process in which the temporary cells are getting matured and are converted into a permanent cells. So a group of permanent cells having similar structure and function is known as permanent tissue. And how permanent tissue is formed? Permanent tissue is formed by the process of differentiation. So in the process of differentiation, when temporary plant cells or the meristematic cells lose their capacity of cell division, then they are converted into permanent tissue. So we know about permanent tissue here. Permanent tissue is subdivided into two categories: a simple permanent tissue or simple tissue and complex permanent tissue or complex tissue. What is the basic difference between simple permanent tissue and complex permanent tissue? Simple permanent tissue is a type of permanent tissue which is made up of only one type of plant cells, whereas complex permanent tissue is a type of permanent tissue which is made up of more than two cells or more than two types of cells. It means, as its name, simple tissue, it is very simpler in nature, whereas as the name of the complex tissue or complex permanent tissue, it is very complex in nature because the structure and function is very complex in case of complex tissue. Actually, simple permanent tissue or a simple tissue is the tissue which is mainly located in all parts of the plant body, whereas complex tissue, a very specialized tissue or a special tissue, and is helpful only in the process of conduction of various substances like water, minerals or food materials. Here in this video we will study about simple permanent tissue. Simple permanent tissue is also subdivided into three categories: parenchyma, collenchyma and sclerenchyma. In this video, we will discuss about only the first type of simple permanent tissue, that is parenchyma tissue. So students, kindly like, share and subscribe this channel, and also because for the joining of various students to this channel also. तो बच्चों फटाफट क्या करो, इस वीडियो को शेयर और लाइक कर दो ताकि और भी बच्चे इससे जुड़ सके और वो इस अभी तुरंत जो पढ़ाई हो रही है इससे रिलेटेड वो भी कनेक्टेड होकर और भी ज्यादा पढ़ सकें. तो देखो बच्चों, आज हम लोग पैरेन्काइमा टिश्यू के बारे में स्टडी कर रहे हैं, जो कि सिंपल परमानेंट टिश्यू का पहला प्रकार है, फर्स्ट टाइप है. फर्स्ट ऑफ ऑल, हु डिस्कवर्ड पैरेन्काइमा टिश्यू? Parenchyma tissue
was actually discovered by Robert Hooke. Robert Hooke, जैसा कि आपको ध्यान में होगा, who discovered the cell also? Robert Hooke discovered and coined the term parenchyma as well. आप यह इमेज देख सकते हैं रॉबर्ट हुक का. रॉबर्ट हुक साहब के बारे में आपको पता भी होगा कि ही वॉज अ ग्रेट इंग्लिश फिजिशियन. तो रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड एंड क्वाइंड parenchyma. So parenchyma tissue is actually also known as fundamental tissue or primitive tissue in case of plant body. When we are talking about the evolution of the plants, then first of all, within the plant body, this tissue was formed. So that this tissue is also popularly known as fundamental tissue or primitive tissue. So in various exams or competitive exams, this question often asked that which is the fundamental tissue in case of plant body. So we will answer parenchyma. When we are talking about parenchyma tissue, then we must have to study about the characteristics of parenchyma cells. So what is the shape of parenchyma cell? How much is the shape of the parenchyma cell? Actually, parenchyma cells are isodiametric in nature. Parenchyma cells are oval, circular, or spherical or polygonal in nature. Parenchyma cells having a large intercellular space. They have a large central vacuole also. They have a prominent nucleus, distinct nucleus also inside the cell. They have thin cell wall which is composed of cellulose and pectin. Actually, parenchyma cells का जो आप इमेज यहां देख रहे हैं, इस इमेज को देखकर आपको पता आराम से चल रहा होगा कि इसमें बहुत बड़े बड़े आपको इंटरसेलुलर स्पेस दिखेंगे. तो जैसा इंटरसेलुलर स्पेस और इतने बड़े वैक्यूल यहां पर अगर पाया जा रहा है, जिससे यह तय हो जाता है, इनके फंक्शन के बारे में भी हमें एक आइडिया मिल जाता है. अभी हमने जब parenchyma सेल्स का स्ट्रक्चर जान लिया है, तो हम थोड़ा इसके फंक्शन के बारे में समझ लें. What are various functions of parenchyma tissue? These are the following functions of parenchyma tissue. Number one, they help in the formation of food particles. They help in the production of food by the process of photosynthesis. It means they perform photosynthesis. So this is also a very important function of plants, and this is because of these parenchyma cells or the parenchyma tissue. The another function of parenchyma is to provide some support also. It is also responsible to maintain buoyancy force so that hydrophytes or aquatic plants may easily float on the surface of water. It is also very much important to store various substances like food, water, nutrients, etc. It is also responsible to store wastage or gastric substances. So there are various functions of parenchyma tissue. So how many types of parenchyma tissue? अब हम थोड़ा parenchyma tissue के types के बारे में, kinds के बारे में समझ लें. तो there are mainly 4 kinds of parenchyma tissue. कौन कौन से 4 प्रकार होते हैं parenchyma टिश्यू के? वन बाय वन हम फटाफट समझ लें. तो देखो, यहां पर आप देख सकते हो, यहां पर चारों प्रकार के बारे में यहां पर एक फ्लो चार्ट आपको दिख रहा है. इसका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं. और एक्चुअली देयर आर 4 टाइप्स और काइंड्स ऑफ द parenchyma टिश्यू. नंबर 1, Sclerenchyma. Number 2, Erenchyma. Number 3,
idioblast. Number 4, prosenchyma. Some other types of parenchyma tissue are also available, as the mucilaginous parenchyma or any other. But there are mainly 4 kinds of parenchyma tissue which we have to study for NEET preparation or even our board examinations. So first of all, one by one we have to study these. The first type is chlorenchyma. As its name, we may easily answer this. If anybody asks what is chlorenchyma, then we will answer that chlorenchyma is a type of parenchyma tissue that contains chloroplast. So this is a very special parenchyma, and we also know about the feature of the chloroplast. In the chapter of the shell, we have studied about the function of chloroplast, that chloroplast is the kitchen house of the cell because it has to prepare the food by the process of photosynthesis, and also this is because due to the presence of chlorophyll pigment, a green pigment. So the parenchyma which contains chloroplast is generally referred as chlorenchyma. So what is the function of chlorenchyma? As it has a chloroplast, then it must have to perform photosynthesis. So the first function of chlorenchyma is to perform photosynthesis. The function of the chlorenchyma is to prepare food. The another function of chlorenchyma is to store food molecules or even water or nutrients. Where parenchyma tissue is located? Actually, this type of parenchyma tissue, that is the chlorenchyma, is located in various parts of the plant body. Whether storage of materials are available. As for example, this type of tissue, chlorenchyma, may be available or present in the epidermal cells, epidermal locations, epidermis of stem, epidermis of leaf. Actually, chlorenchyma, when we are talking about the chlorenchyma and it has to contain a chloroplast, then the maximum presence of the chlorenchyma tissue is only within leaf location, leaves location. Because we know about the leaf, that leaf contains a green pigment chlorophyll, and this is due to the presence of the chloroplast there. So जैसा कि हम जानते हैं कि पैरेंकाइमा का यह जो प्रकार है क्लोरेनकाइमा, जैसा इसका नाम है इसीलिए क्योंकि ये किससे बना हुआ है बच्चों? क्लोरोप्लास्ट से बना हुआ है. इसके पास क्लोरोप्लास्ट है. क्लोरोप्लास्ट है, इसके अंदर में क्लोरोफिल पिगमेंट होगा, ग्रीन पिगमेंट होगा, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस करेगा. आपको पता है फोटोसिंथेसिस के लिए 4 रॉ मटेरियल्स चाहिए होता है: कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल, सनलाइट. और क्लोरोफिल तो बहुत ही मेजर फैक्टर या फिर मेजर रोल प्ले करता है इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. तो इसलिए यह तय हो गया कि फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कराना इसकी जवाबदेही है. और आपको पता होना चाहिए फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करना यह प्लांट के लिए कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस की बात है. प्लांट्स इसी के लिए जाने जाते हैं. प्लांट्स आर नोन एज प्रोड्यूसर्स ड्यू टू द प्रोसेसिंग ऑफ दिस फोटोसिंथेसिस. तो प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करना है और यह किसकी वजह से हो पाता है? बहुत इंपॉर्टेंट टिश्यू क्लोरेनकाइमा की वजह से हो पाता है. तो यहां पर ये जो क्लोरेनकाइमा होता है यह भी 2 तरह का होता है. अभी हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन सिंपल समझो क्लोरेनकाइमा भी 2 तरह का होगा. एक कहलाएगा पैलिसेड पैरेनकाइमा और पैलिसेड क्लोरेनकाइमा, और दूसरा कहलाएगा स्पॉन्जी पैरेनकाइमा और स्पॉन्जी क्लोरेनकाइमा. ठीक है. तो पैलिसेड और स्पॉन्जी, देखो स्पॉन्जी जो होगा वो इरेगुलर शेप का होता है, जबकि पैलिसेड जो होता है वो पिलर लाइक या टॉल होता है. इसमें टॉल सेल्स होते हैं, पिलर लाइक सेल्स होते हैं.
इसलिए इसका नाम है पैलिसेड। तो सिर्फ सेल्स के शेप के हिसाब से आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ द शेप ऑफ द सेल्स, दिस क्लोरेनकाइमा इज ऑफ टू टाइप्स, पैलिसेड और स्पॉन्जी। अब हम थोड़ा एक चीज और जान लें, ये जो पैरेन्काइमा टिश्यू का यह जो प्रकार है क्लोरेनकाइमा, ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेगा, स्टोर करेगा, स्टोरेज का काम करेगा, न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करेगा, फूड को स्टोर करेगा, इवन वाटर को स्टोर करेगा, कुछ वेस्टेज को भी स्टोर कर सकता है। कहने का मतलब है कि पूरे प्लांट बॉडी में जहां जहां स्टोरेज यूनिट होंगे, जैसे थोड़ा याद करो कि अगर हम जेरोफाइट्स की बात करें, जेरोफाइट्स मीन्स बच्चों कौन से प्लांट्स होंगे? वही डेजर्ट प्लांट्स, जैसे कैक्टस वगैरह है। तो उसमें आप देखते हैं कि वो जो प्लांट्स है, दे हैव टू स्टोर वाटर। क्यों? क्योंकि वो तो डिजर्ट लोकेशन में पाए जाते हैं, उनको वाटर का स्कार्सिटी होता है, तो फटाफट उनको वाटर को स्टोर करके अपने बॉडी में संभाल कर रखना होता है। तो ये जो वाटर को स्टोर वो करते हैं, असल में किसकी वजह से करते हैं? यही क्लोरेनकाइमा की वजह से। ठीक है, उसी तरह से ये जेरोफाइट्स के लिए सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि ये टेरेस्ट्रियल प्लांट्स और लैंड लिविंग प्लांट्स के लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है क्लोरेनकाइमा। ठीक है, तो अगर हमसे अगर कोई पूछता है विच टिश्यू इज द मोस्ट एबंडेंट और द मोस्ट वाइड स्प्रेड टिश्यू इन द प्लांट बॉडी, तो हम कह सकते हैं पैरेन्काइमा या फिर कह सकते हैं क्लोरेनकाइमा। ठीक है, तो ये हुआ पैरेन्काइमा के फर्स्ट टाइप क्लोरेनकाइमा के बारे में। अब देखो सेकंड टाइप है क्लोरेनकाइमा के बाद, वो है इयरिनकाइमा। जैसा इसका नाम है, देखो इयरिनकाइमा जो है ये कहां पाया जाएगा? इयरिनकाइमा इज ए स्पेशल पैरेन्काइमा टिश्यू विच इज प्रेजेंट इन हाइड्रोफाइट्स। व्हाट आर हाइड्रोफाइट्स? हाइड्रोफाइट्स आर aquatic plants which are water living plants। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल हाइड्रिला प्लांट को आप देख सकते हैं। हाइड्रिला प्लांट जो कि एक्वेटिक प्लांट है ना, तो एक्वेटिक प्लांट है मतलब ये पानी में रहता है। ठीक है, पानी में रहता है, तो इसको सबसे बड़ा काम क्या करना होता है? दे नीड अ सपोर्ट सो दैट इट मे इजिली फ्लोट ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर। वाटर के सर्फेस पर देखो इसको फ्लोट करना है, तैरना है। तो तैरते रहना है, तो इसके रूट में एयर कैविटीज पाए जाएंगे, एयर बलून्स पाए जाएंगे, एयर स्पेसेस पाए जाएंगे, एयर सैक्स पाए जाएंगे। एयर सैक्स पाए जाएंगे तो क्या होगा? उसमें एयर फिल्ड कैविटीज अगर पाए जाएंगे, उसमें एयर फिल्ड होगा, एयर भरेगा। जैसा आप देखते हो ना टायर, आपको अगर तैरना अगर सीखना होता है तो पहले क्या करते हैं? पहले जो स्विमिंग स्कूल्स होते हैं वो क्या करते हैं? वो टायर पहनाकर और आपको सीधे पानी में उतार देते हैं। तो टायर में क्या होता है? ऐसा टायर में असल में वो एयर फिल्ड होता है। एयर फिल्ड होता है तो उससे क्या होता है? तो एक अपवर्ड फोर्स क्रिएट होता है वाटर सरफेस पे। अपवर्ड फोर्स क्रिएट होता है जिसको बायोंसी कहा जाता है। तो बायोंसी फोर्स क्रिएट होता है, तो बायोंसी की वजह से वहां पर आसानी से हम उस अपवर्ड फोर्स की वजह से, अपवर्ड प्रेशर की वजह से क्या करते हैं? आराम से हम वहां पर फ्लोट कर पाते हैं, स्विम कर पाते हैं, है ना। तो बस यही काम यहाँ पर एक्वेटिक प्लांट्स या हाइड्रोफाइट्स करेंगे, हाइड्रिला जैसे हाइड्रोफाइट्स करेंगे। ठीक है, सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इयरिनकाइमा टिश्यू हियर? इयरिनकाइमा विच इज ए वेरी मच स्पेशल type of parenchyma tissue is mainly responsible to maintain buoyancy or an upward force so that the aquatic plant may easily float on the surface of water। ठीक है, तो aquatic plants के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया इयरिनकाइमा। ठीक है, इयरिनकाइमा का मेन फंक्शन यही है कि बस ये aquatic plants को एक ऐसा सपोर्ट प्रोवाइड कराता है, क्योंकि इन एक्वेटिक प्लांट्स यानी हाइड्रिला जैसे जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं, उनके रूट जो होते हैं वो कैसे होंगे? फ्लेशी रूट होंगे। और वो जो फ्लेशी रूट होंगे उनके अंदर में क्या पाया जाएगा? एयर कैविटीज पाया जाएगा, एयर सैक्स पाया जाएगा, ताकि एयर फील्ड कैविटी जो पाए जाएंगे उसमें एयर फील्ड हो सके और एक अपवर्ड फोर्स, बायोंसी फोर्स क्रिएट हो, जिसकी वजह से वो प्लांट आराम से इजिली वाटर सरफेस पर फ्लोट करता रहे। तो इस तरह से हमने इयरिनकाइमा का एक फंक्शन समझ लिया, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है, दैट टू मेंटेन फ्लोटिंग नेचर इन एक्वेटिक प्लांट्स और हाइड्रोफाइट्स। ठीक है, अब देखो थर्ड टाइप भी है पैरेन्काइमा का, इसे क्या बोलेंगे? आइडियोब्लास्ट।
Ideoblast is a very much special type of parenchyma tissue. It is also a very much special parenchyma tissue. ये जो आइडियोब्लास्ट टिश्यू है ये क्या करेगा? तो देखो, इट स्टोर्स इर्गैस्टिक सब्सटेंसेस. व्हाट डू यू मीन बाय इर्गैस्टिक सब्सटेंसेस? देखो, इर्गैस्टिक सब्सटेंसेस का मतलब है वेरियस केमिकल्स और वेरियस वेस्टेज. जैसे आपने कभी पढ़ा होगा कि प्लांट्स के अंदर में भी कई सारे वेस्टेज जो है प्लांट के बॉडी में, स्टीम रीजन में या लीफ रीजन में जो है स्टोर्ड रहते हैं. जैसे रेजिन, टैनिन, लैटेक्स. रबर के लैटेक्स के बारे में आपने जाना होगा. ठीक है, तो ये सब रेजिन, टैनिन, लैटेक्स, एल्केलॉइड्स, ये सब क्या है? ये सब प्लांट्स के लिए एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है. ये वेस्टेज है. तो इन वेस्टेज को स्टोर रखने वाला भी कोई होगा. बस यही है कौन सा टिश्यू? आइडियोब्लास्ट, पैरेन्काइमा का एक टाइप. ठीक है. सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आइडियोब्लास्ट? द फंक्शन ऑफ आइडियोब्लास्ट इज टू स्टोर मेनी इर्गैस्टिक सब्सटेंसेस इन द प्लांट पार्ट्स. ठीक है, तो आइडियोब्लास्ट का और कोई फंक्शन नहीं है. चलो नेक्स्ट है प्रोजेनकाइमा. प्रोजेनकाइमा, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्रोजेनकाइमा? देखो, प्रोजेनकाइमा का फंक्शन समझने से पहले बस इतना समझ लो कि इसमें जो सेल्स होते हैं दे आर वेरी मच लॉन्गर इन साइज. ये लॉन्गर साइज के होंगे, इलोंगेटेड होंगे, फाइबर लाइक होंगे, फाइब्रस होंगे. जैसे ही मैंने बोला कि फाइबर लाइक होंगे, फाइब्रस होंगे, तो आराम से समझ में आना चाहिए, इतना तो समझ में आना चाहिए कि जो भी फाइबर लाइक होते हैं इसका मतलब है दे नीड सपोर्ट. और इवन द फंक्शन ऑफ द प्रोजेनकाइमा इज टू प्रोवाइड अ मिनी सपोर्ट. एक सपोर्ट प्रोवाइड कराना, एक रिजिडिटी प्रोवाइड कराना, एक टफनेस प्रोवाइड कराना. ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि पैरेन्काइमा टिश्यू भी कई प्लांट पार्ट्स में एक लेयर के रूप में सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं. हाँ, यह इनका बेसिक फंक्शन नहीं है. पैरेन्काइमा का यह बेसिक फंक्शन नहीं है कि इनको सपोर्ट प्रोवाइड कराना है. देखो क्यों फंक्शन नहीं है? क्योंकि इनको स्टोर करके रखना है. जब स्टोरेज करना है तो ठीक है, स्टोरेज करना है तो हल्का सपोर्ट तो इनको प्रोवाइड कराना पड़ेगा ना, ताकि सही से स्टोर रख सके. तो सही से सपोर्ट किसकी वजह से प्रोवाइड होगा? यही पैरेन्काइमा टिश्यू की वजह से. कौन सा टाइप? प्रोजेनकाइमा. ठीक है, सो द फंक्शन ऑफ द प्रोजेनकाइमा इज टू प्रोवाइड रिजिडिटी और द सपोर्ट टू द प्लांट पार्ट्स. ठीक है, तो यहां पर हमने पैरेन्काइमा के चारों टाइप के बारे में समझ लिया है. देखो, इस वीडियो में हम लोग सिर्फ पैरेन्काइमा टिश्यू के बारे में समझ रहे हैं. When we are discussing about the location of this parenchyma tissue, then we must remember that it is a living tissue and is made up of living cells, so it is located in almost all the parts of the plant body. Whether it may be located, where it may be located, it may be located in various parts of the plant body, like it is located in leaf, it is located in root, it is located in stem, it is located in leaf. Actually, it is located in all the edible parts of the plant body. As for example, edible roots, edible stem, edible leaf, edible fruits, edible seeds. तो जितने भी edible parts होंगे, जो भी खाने योग्य पार्ट होंगे, उन सारी जगह वो खाने योग्य इसलिए है क्योंकि वहां पर क्या है? पैरेन्काइमा टिश्यू प्रेजेंट है. ठीक है, तो पैरेन्काइमा टिश्यू के जब हम एनाटॉमी के बारे में बात करते हैं, अगर आप याद करोगे जब भी हम प्लांट्स के एनाटॉमी के बारे में बात करते हैं तो प्लांट्स में कई सारे पार्ट है ना, कॉर्टेक्स है, पिथ या मेडुला है. तो जितने भी प्लांट के एनाटॉमिकल जो भी पार्ट्स होते हैं उन सारे जगह पैरेन्काइमा टिश्यू प्रेजेंट होता है. इट मींस पैरेन्काइमा टिश्यू इज प्रेजेंट इन द epidermal part, cortex part, pith or medulla part, and even it may be present in the complex tissue part also. देखो, कॉम्प्लेक्स टिश्यू की बात इसलिए कर रहे हैं, अभी तो हम लोग कर रहे हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू का टाइप. ठीक है, परमानेंट टिश्यू ही यानी हम लोग पढ़ रहे हैं. तो परमानेंट टिश्यू में सिंपल परमानेंट टिश्यू, सिंपल टिश्यू के बारे में पढ़ रहे हैं. But when we will discuss about the complex tissue or complex permanent tissue, then we must know that it is of two types.
जाइलम टिश्यू और फ्लोएम टिश्यू। तो जाइलम टिश्यू एंड फ्लोएम टिश्यू जो दोनों तरह के जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं, उनके जब हम चारों टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी जाइलम के भी 4 टाइप्स होते हैं, जैसे ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर्स, तो उसमें एक टाइप आपको जाइलम पैरेन्काइमा भी मिलेगा। उसी तरह से फ्लोएम टिश्यू के भी टाइप्स होते हैं, जैसे सिव ट्यूब कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर्स, उसमें एक टाइप आपको फ्लोएम पैरेन्काइमा भी मिलेगा। इसका मतलब पैरेन्काइमा टिश्यू is also helpful to conduct various useful substances like water, minerals and even food particles. तो कंडक्शन में भी ये हेल्पफुल होता है, एंड सो दैट इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन जाइलम टिश्यू और फ्लोएम टिश्यू। तो इस तरह से ये पैरेन्काइमा टिश्यू जो है वो प्लांट के वेरियस पार्ट्स में प्रेजेंट होता है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट क्लोरेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। देखो, सिंपल परमानेंट टिश्यू जो कि 3 तरह का होता है, पैरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने पैरेन्काइमा के बारे में समझा है। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट क्लोरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा। ठीक है, देखो कई बच्चों को यहां पर कंफ्यूजन हो जाता है कि क्या क्लोरेन्काइमा और कॉलेन्काइमा दोनों एक ही चीज है? नहीं, क्लोरेन्काइमा is a type of parenchyma, but collenchyma is a type of simple permanent tissue. ठीक है, देखो सिंपल परमानेंट टिश्यू जो कि 3 तरह का होता है, पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, तो उसमें कॉलेन्काइमा जो होगा वह भी एक ऐसा टिश्यू है जो कि उसका बेसिक फंक्शन क्या होगा? टू मेंटेन टेंसाइल स्ट्रेंथ, टू मेंटेन रिजिडिटी, ठीक है, टू मेंटेन लोड बियरिंग कैपेसिटी। और स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू का बेसिक फंक्शन क्या होगा? स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू का बेसिक फंक्शन होगा टू प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ। देखो यहां पर तीनों में कुछ डिफरेंसेस होंगे। आगे का जब हम वीडियो, आगे के नेक्स्ट वीडियो में जब हम लोग कॉलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा के बारे में समझेंगे तो डिफरेंसेस समझ में आएगा। जब भी डिफरेंसेस की बात होगी तो उनके सेल्स के फीचर के बारे में याद रखना। जैसे पैरेन्काइमा टिश्यू में मौजूद जो भी पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं उसके बारे में अभी मैंने बताया था कि ये सेल्स कैसे होंगे, आइसोडायमेट्रिक नेचर के होंगे। इनका शेप कैसा होगा? तो ओवल होंगे, स्फेरिकल होंगे, सर्कुलर होंगे, पॉलीगोनल भी हो सकते हैं। ठीक है, और इनके पास बहुत ही लार्ज इंटर सेलुलर स्पेस होगा, सेल्स के बीच में बहुत ज्यादा गैप होगा। इनके इन सारे सेल्स के सेंटर में बड़ा सा सेंट्रल वैक्यूल होगा जो कि प्लांट सेल का इंपॉर्टेंट फीचर भी होता है। और ये वैक्यूल या इंटरसेलुलर स्पेस इसलिए है ताकि इनको स्टोरेज का भी काम करना होता है। ठीक है, हाँ, ये परमानेंट टिश्यू के टाइप है, इसलिए ये सेल डिवीजन परफॉर्म तो करेंगे नहीं, क्योंकि डिफ्रेंशिएशन हो चुका होगा तभी तो ये टेम्पररी टिश्यू और मेसमेटिक टिश्यू से डेवलप होकर परमानेंट टिश्यू के टाइप बने हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, इफ यू हैव एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, देन यू मे कमेंट। ठीक है, सो दिस इज द एंड ऑफ दिस टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।